Today we shall start the discussion with the new concept called as the inventory. We have already done all these methods and the basic conceptual thing of with regards to the inventory control. So today we'll start with the inventory types. Okay, how do we count or how do we manage the inventory by these two type of uh, by these two type of thing. Okay, first is perpetual inventory and second is physical inventory. So these two types, perpetual inventory and the physical inventory, are most appropriate and most important while we are going to make the record of all the stock items. Okay, so whenever we are going to talk about the our all the stocked item, we need to apply two type of things. First is perpetual, which can help us to make the record of the stocked item, and second method is the physical physical inventory, which help us to make the record of all the stocked item when we are going to make the inventory management or inventory control. So when we are going to discuss the perpetual inventory, first we need to understand what does it mean by the perpetual inventory. As we have already discussed in our purchase control, where we have discussed perpetual directly mean that the all these thing, when we at any point of time, the perpetual inventory is paper record that should be indicate exact quantity of the every item you have in your on your hand. Okay, so if we are going to define the perpetual inventory, this is the basic definition and basic idea of the perpetual inventory. At any point of time, the perpetual inventory is paper record that should indicate exact quantity of the every item which you have on hand or which you have already stocked in your storage area, your store, or your in your operation in your business. Okay, so as we have discussed the perpetual inventory in our purchase control, where we have discussed the inventory or the thing, as soon as the items is lost, we directly order the items to our vendor. Okay, we we will not wait for the and the item all the items, we directly record and we ask for the new inventory or new order when we are see the item is not item is going to sold out. Okay, so it means कि जब भी हमारे पास आइटम खत्म होता है तो इन ऑन डेली बेसिस वी अपडेट एंड वी आस्क और वी ऑर्डर द आइटम्स so that we can make our supply on in uh, regular basis and avoid the sold out situations for our business. Okay, हमने वहां पर भी यही पढ़ा था कि परपेचुअल इन्वेंटरी जैसे ही हमारे पास जो आइटम्स स्टॉक्ड आइटम है वो हमें हमारे खत्म होने लगते हैं तो सीधे हम उनको ऑर्डर कर लेते हैं टू अवॉइड दी सोल्ड आउट सिचुएशंस. On the other hand, we have already discussed the periodical परचेज कंट्रोल, जहां पर हमने पीरियोडिक वे में जो ऑर्डर देते थे और उसको उसी वे में हम रिसीव करते थे. इन सिमिलर वे वी विल आल्सो make record of the all the stocked item in our inventory control so that we can make the daily records of the stocked item, what items has been used and what is remain. Okay, all these items record on daily basis called as the or when we make the record on paper
base, or we can also make the computer inventory management system like we have in computer reservation system. In similar way, we have also the computer inventory management system, which help us to make the record of all the inventories or make the record of all these stocked item on the computer system. Okay, so there is two way to make the record of the stocked item which we have on hand in our business. First is computer inventory management system, which is completely computerized way, and second is physical, where we make the record on paper. Okay, paper based. If we are going to talk about the perpetual inventory, in perpetual inventory we make the record, all the records, with the help of the bin card. Bin card we have already discussed, where the bin card directly means where we make the all the records and all these items which we have already used, make those items record in bin card. Okay, so this is the basic idea of the perpetual inventory. So why we need the perpetual inventory? It helps to make the record on daily basis and avoid the sold out situation for our business. Second thing, the second reason of the use the perpetual inventory, it also greatly assists to detect the theft condition or employee theft or theft thing in our business. Okay, with the help of the daily reports or daily records or daily tracing, we can detect or identify any employee thefts condition in our business. Okay, अब the question is arise that how do we control or how do we identify the theft condition of our employee when we are going to stock the items in our business or in our storage area. So in this case, we always count all these inventories, okay, and match with the invoices. जो भी हमने अपना रिकॉर्ड्स बिन कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड किया है, उसको हम अपनी बिन कार्ड का जो हमारा रिकॉर्ड है उसको हम अपनी जो इनवॉइस हमें रिसीव हुई है वेंडर साइड से उससे मैच करेंगे कि हमारे पास। और जो रिक्विजिशन फॉर्म है, तीन चीजें हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, रिक्विजिशन फॉर्म, बिन कार्ड और थर्ड इज इनवॉइसेस। तो हम रिक्विजिशन फॉर्म, बिन कार्ड और हमारे जो इनवॉइसेस जो हमें डिलीवरी के टाइम वेंडर साइड से मिली थी, उन सभी के आइटम्स और यूनिट्स और उनकी कॉस्ट को मैच करेंगे। अगर वो मैच हो रही हैं तो ठीक ठीक, अगर मैच नहीं हो रही हैं और आइटम्स में थोड़ी सी हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि कुछ आइटम कम है या कुछ आइटम में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन डिटेक्ट दी कि आपकी कोई थेफ्ट कंडीशन या फिर कुछ विदाउट रिकॉर्ड कोई चीज रह गई है। ठीक है, तो इन ऑन योर स्क्रीन यू कैन identify by matching all these forms, requisition form, bin card and the invoices, so that you can identify error or tracing error or any error which you have feel when you going to record any items. Okay, so on your screen you can see the perpetual inventory form. This is the perpetual inventory form where we records of each item. Okay, with the help of this form we record of each item. You can see over here, first we have to mention our, this is the bar name, okay, this is the address, and here we need to put the item name. For example, if we have the gin, okay, because this is the bar, so we put all these FN beverage part. Size we can also mention, distributor where we have received the items or vendor name, okay, and here we mention the bottle cost, one bottle cost. Okay, so here
in this column we need to mention all these date which the inventory have requisite or the on hand requisite. okay, रिक्वेसाइड मतलब यहाँ पर जब हमारे रिक्वेजिशन फॉर्म आते हैं तो उसकी इन्वेंट्री जितनी उन्होंने मांगी थी वो यहाँ मेंशन होगी और उसकी डेट यहाँ मेंशन होगी, और यहाँ पर जो हमारी इन्वेंट्री रह गई है, यानी हमारे पास अगर 10 बॉटल जिन की हैं और रिक्वेजिशन फॉर्म के थ्रू 4 बॉटल मंगाई गई थी 12/5/2017 को, तो यहाँ 12/5/2017 5 बॉटल यहाँ मंगाई गई हैं और हमारे पास फिर ऑन हैंड कितनी रह जाएंगी 5। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके कोई कमेंट है तो आप लिख दीजिए कि जो आपका इन्वेंट्री का रिक्वेजिशन फॉर्म किसने रेज किया था, उसका नाम लिख सकते हैं, उसकी पोस्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो रिसीविंग क्लर्क मैनेजर है या फिर स्टोर का मैनेजर है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। सो दिस इज द बेसिक परफॉर्मा ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री फॉर्म वेयर वी ट्रेस ऑल दिस इन्वेंट्री एंड मेक द रिकॉर्ड फॉर आवर इन्वेंट्री एंड मेक द बेटर मैनेजमेंट। दिस इज द फिजिकल वे। ओके, ये फिजिकल वे है। दूसरा वे मैंने आपको बताया जो हम CIM सिस्टम, ओके, यानी कि कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेंटरी इज द मंथली इन्वेंटरी। जिस तरह से हमने एज वी हैव डिस्कस इन परचेज कंट्रोल द टू टाइप ऑफ परचेज, फर्स्ट इज पीरियोडिक and second is perpetual. In similar way here we also discuss the two type of the inventory. First we have already discussed which is the perpetual. Second we are going to discuss the monthly inventory where we make the reports and make the all these countings on fixed specific after the specific period. okay, जैसे हम आपकी परपेचुअल में डे टू डे पे रिकॉर्ड रखते थे वो यहाँ पर नहीं करते हैं। हम मंथली में हम एक स्पेसिफिक या तो फिर हम मंथ के एंड में करते हैं या फिर हम वीक के एंड में करते हैं या फिर हम 15 डेज के अंतराल में करते हैं। ठीक है, इन 3 वे से हम इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हमने पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में या फिर पूरे 15 दिन में कितने हमारी जो स्टॉक आइटम्स थे वो यूज हो चुके हैं और अब कितने हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिजिकली 2 आदमियों की जरूरत होती है। पहला वो जो इन इन्वेंट्री को चेक करता है स्टोर एरिया में कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कितने रह गए हैं, फ्रीजर डीप फ्रीजर में कितने आइटम रह गए हैं। ठीक है, पेरिशेबल आइटम की जो शेल्फ है उसमें कितने आइटम हमारे रह गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ड्राई आइटम है हमारे जो सूखे हैं, स्पेसीज हैं, ठीक है, स्पाइसेस हैं या फिर अलग कोई आइटम्स हैं या फिर मीट के कुछ पोर्शंस हैं वो कितने रह गए हैं। एक तो वो चेक करेगा और दूसरा जो हमारा आदमी होगा वो चेक करेगा कि हमारे जो इनवॉइसेस थी या हमारे जो रिक्वेजिशन फॉर्म थे उसमें कितनी डिमांड किसकी है, मतलब कितनी किसने रिक्वेस्ट की थी और हमने कितना उनको दिया था और अब हमारे पास कितने रह गए। तो इसमें हमें 2 लोगों की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आपके पास आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है या फिर आपका स्टॉक एरिया अच्छा है, आपने सिस्टमेटिक बेस से सारी चीजें स्टॉक की हैं, तो आपको इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक सिस्टमेटिक वे में नहीं किए तो आपको ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। आपको हर इन्वेंट्री जाके चेक करनी पड़ेगी कितने आइटम हमारे पास रह गए, कितने हमने यूज कर लिए हैं। सो दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम परपेचुअल की बात करेंगे तो वहां पर हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहते हैं और उनको मैच करते रहते हैं इनवॉइसेस से। जहां भी हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दिखती है तो हम सभी इनवॉइसेस को, रिक्वेजिशन फॉर्म को और सभी जो हमारे कार्ड बिन कार्ड्स हैं जिसके थ्रू हम या फिर हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री फॉर्म है उसके थ्रू हम मैच करते हैं, जिससे कि हमारी जो भी एरर की गुंजाइश होती है उसको हम देख सकें और क्या उसके रीजन है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम मंथली की बात करेंगे तो दिस इज द फिजिकल वे टू मेक द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेंट्री। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको डे टू डे बेसिस पे या डेली बेसिस पे अप टू डेट रहें। वो चीज कौन कर सकता है? अप टू डेट जो इन्वेंट्री आपको मिलेंगी ज्यादा वो मिलेंगी आपकी परपेचुअल में, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड्स होती रहती हैं।
अब जो हमारी मंथली इन्वेंट्री है इसको हम फिजिकल इन्वेंट्री भी बोलते हैं, जिसमें हमने आप स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप उनको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंट्री था मंथली के बारे में, ठीक है, ये थी हमारी मंथली इन्वेंट्री। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी। अब हम जो हमारे पास सारी चीजें हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड पढ़ ली हैं, अब हम जो हमारे गुड्स हैं या फिर कमोडिटीज हैं उनके प्राइसिंग कैसे रखें, ठीक है, उनके क्या तरीके हैं उनके प्राइसिंग को रखने के, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास फूड के भी आइटम्स हैं, बेवरेजेस भी हैं। अब उनके हम किस प्राइस पे हम उनको सेल करें, ये उनके कुछ तरीके हैं जो आपको 6 तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला तो आपका है एक्चुअल परचेज प्राइस। एक्चुअल परचेज प्राइस में आप, ये वो तरीका है जिसमें आप जिस प्राइस में आपने कोई चीज ली है तो उसी प्राइस में आप उसको सेल कर देते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा है सिंपल एवरेज प्राइस, जिसमें आप बहुत सारे आइटम्स आपने लार्ज क्वांटिटी में लिए हैं और उनका एवरेज प्राइस निकाल के आप एवरेजली एक आइटम का प्राइस रख देते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका फर्स्ट ये फीफो मेथड। फीफो मेथड हमने पहले भी पढ़ चुका है, जिसमें हम जो सबसे पहले आया होता है उसको सबसे पहले खत्म करते हैं और सबसे लास्ट में इन्वेंट्री हमारे पास आती है या फिर हमारा लास्ट में सबसे जो प्रोडक्ट आता है उसको हम सबसे लास्ट में सेल करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड दी एनी स्पॉइलेज ऑफ दी आइटम्स, यानी हम किसी भी चीज की खराब को बचाने के लिए और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है जो F&B ऑपरेशन में काम आता है। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो आपका प्राइसिंग अगर आपको रखना है, इस मेथड से क्या होता है कि आपका जो प्राइसिंग है, आपने जिस प्राइस पे सबसे पहले कोई चीज ली थी, पुरानी हो गई है, वो उतनी बिक नहीं पाई, तो आप उसी अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखते हैं जो जिस प्राइस में आपने पहले ली थी। इसमें आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, आपका प्राइस उस वक्त कितना था जब आपने वो इन्वेंट्री ली थी या फिर अपना आइटम लिया था, और अब मार्केट में उसका क्या चल रहा है प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो प्राइसिंग है वो रखना होगा। इसी इन सिमिलर वे लीफो, लीफो इसका पूरा अपोजिट है। जैसे फीफो में हम जो पहले आया होता है उसको हम पहले नहीं बेचते, जो मतलब जो हमारा पहले आया है उसको हम पहले सेल करते हैं और जो हमारा लास्ट में आया है उसको हम बाद में सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन लीफो में क्या है कि लीफो में जो लेटेस्ट आइटम हमारे पास आया है अभी अभी का, हम उसको पहले सेल करते हैं और जो पहले आया है उसको हम बाद में, जो हमारा पहले का रह चुका है पुराना, उसको हम बाद में सेल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राइसिंग है आइटम्स की उसको हम एक्सपेंसिव कर देते हैं, यानी लेटेस्ट वाला हम ज्यादा महंगा कर देते हैं और पुराना वाला कम कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर भी दो चीजें देखनी होंगी। पहला, हमारी कम्युनिटी का जो प्राइसिंग मार्केट में किस तरह का है, ठीक है, और दूसरा, हमारी जो कम्युनिटीज हैं परचेज हमने किस प्राइस पे की हैं, उसी अकॉर्डिंग हम उसको प्राइस करके फिर बेचते हैं। जो लेटेस्ट आइटम है उसको पहले बेचते हैं, जो पहला आइटम है उसको लास्ट में बेचते हैं, ठीक है। ये मेथड आपको, मैं इस मेथड से हम अगर आपको हम इससे करेंगे तो हमारे जो पहले वाले आइटम लिए हुए हैं हमारे, वो इसमें स्पॉइलेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपनी प्राइसिंग को फिक्स कर लेते हैं, 5 महीने, 6 महीने, एक हफ्ता, 15 दिन या फिर 2 महीने या एक साल के लिए। तो इस तरह से आप, ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड है या फिर तरीका है प्राइसिंग करने का। और लास्ट मेथड है हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस। इस प्राइस में हम जो आपकी प्राइस कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी करके देते हैं, ठीक है। महंगी करके क्यों देते हैं, हम अपना जो भी स्टोरेज चार्जेस है, जो हमारे एम्प्लॉय की तनख्वाह है, उसको सब प्लस करके उसमें उसको थोड़ा महंगा करके देते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस। तो ये 6 तरीके हमारे प्राइसिंग करने के हैं, जो भी हमारी कमोडिटीज का मतलब है यहाँ पर, जो भी हम अपने आइटम्स और प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपैरिजन है फिजिकल और परपेचुअल इन्वेंट्री में, कि हमारे इनमें क्या फर्क होता है। जैसे हमने पहले देखा, परपेचुअल और फिजिकल इन्वेंट्री दोनों ही है, तो दोनों ही एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीके। पहली जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसको हम मंथली इन्वेंट्री भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री है वो हमारा डेली बेसिस की इन्वेंट्री है या फिर अप टू डेट इन्वेंट्री है, जिसको हम कंटिन्यूअली अप टू डेट करते रहते हैं एज पर आवर फॉर्म्स जो हमें मिली है। तो ये हमें सभी हेल्प करते हैं टू मैनेज अवर इन्वेंट्रीज, जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम हैं उनको मैनेज करने के लिए। इसमें दो तरीके हमने और देखे हैं। जो हमारा फिजिकल इन्वेंट्री है उसमें हम मोस्टली फिजिकल तरीके अपनाते हैं टू कैलकुलेट ऑल दीज आइटम्स। हम एक एक करके सब आइटम को हमें देखना पड़ेगा, फ्रीजर में कितने हमारे रह गए हैं,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कितने हैं, इसके अलावा ड्राई जो हमारे गुड्स हैं, सूखे जो गुड्स हैं वो कितने हैं, केमिकल स्टोर्स कितने हैं, अल्कोहलिक बेवरेज कितने रह गए हैं, नॉन अल्कोहलिक कितने रह गए हैं, हम उनको एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, फिर उनकी एक अलग अलग शीट बनाते हैं। तो ये तरीका है फिजिकल इन्वेंट्री का। दूसरा तरीका हमने परपेचुअल ऑलरेडी, जिसमें हम दोनों ही तरीके यूज करते हैं, कंप्यूटराइज्ड भी और ऑन पेपर। ठीक है, आप यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपका मोस्ट इफेक्टिव है जो कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हम कंपेयर करेंगे बिन कार्ड से। ठीक है, बिन कार्ड जो हमें हेल्प करता है परपेचुअल इन्वेंट्री को मैनेज करने में। अगर हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उसको हमारे जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने में आसानी होगी, और हमें कोई उनका पेपर रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कुछ फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमें कोई स्पेसिफिक मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द सम फॉर्मूलाज द सिस्टम विल कैलकुलेट ऑल दिस क्वांटिटी विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड व्हाट क्वांटिटी वी हैव रिमेन इन आवर ऑन हैंड बिजनेस, मतलब ऑन हैंड हमारे स्टोरेज एरिया में कितनी रह गई हैं। So that is it for the inventory control. With this we finish the chapter of the inventory control, where we have discussed all these aspects of the inventory, whether we are talking about the basic concept of the inventory or we are talking about the techniques and methods, what types of inventory and the pricing of the commodities we have discussed in this chapter.